Hello students and my dear friends, welcome you all in Saraswat International Academy again. So in previous lecture or in previous video we had completed so many sums in your exercise 5.2, right? And last two sums is remaining, three sums, okay? 18, 19 and 20. So moving to the 18th one, okay? 18 number sum. You just see guys. See in this sum what we have to find or what is given in this sum, you just see. Okay, here the sum of fourth and eighth terms of an AP is 24. Okay, इसका मीनिंग समझो guys. What is given? You just see sum of fourth and eighth term of an AP is 24, right? आप लोग को यहाँ पे फोर्थ एंड एट टर्म जो है उसका एडिशन मतलब के सम गिवन है. ओके गाइस, सो सी सम फोर्थ नंबर टर्म मींस A4 गाइस, ओके, प्लस एट नंबर टर्म मींस A8 इज इक्वल टू व्हाट 24. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, वी कैन से दैट. ओके, आप लोग यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हो गाइस? यू जस्ट सी A4 मींस व्हाट A plus 3D, as you know very well. A4 means what? A plus 3D. Okay, what is A8? A plus 7D is equal to 24. Okay, so now add the like terms, right? A and A, it's 2A. 3D plus 7D, it's 10D is equal to 24. Is this clear all of you? Okay, this is your actually main फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से दैट. ओके, तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर कोई आई कही देते हैं, मीन्स आई बोल देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? सम ऑफ, यू जस्ट सी अनदर स्टेटमेंट, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44. मीन्स के ये दोनों का एडिशन 44 है, राइट? सम ऑफ सिक्स्थ नंबर टर्म एंड व्हाट sixth and 10th, okay, term is 44. Means S6, it's not S6, it's A6 guys, okay, plus 10, it means A10 is equal to 44. okay, जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे है. okay ना? चलो now moving to A6 means what? A plus 5D guys, okay. A10 means what? A plus 9D is equal to 44. So therefore A and A, it's 2A, 5D and 9D guys. 5D plus 9D, 5D and 9D को अगर आप लोग ऐड करोगे तो it's 14D is equal to 44. This is your main second equation, means second equation. okay, अब ये जो दोनों इक्वेशंस है उन लोग को हम लोग सॉल्व करते हैं, बराबर. सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, यू कैन यूज एनी मेथड लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज योर फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो हियर वी हैव टू इक्वेशंस लाइक 2A plus 10D is equal to 24, right? 2A plus 10D is equal to 24, right now? Okay, and the second equation here we have, that is 2A plus 14D is equal to 44. You just see in your elimination method, you just take any one variable having the coefficients are same, barabar. In both the equations you just see variable A having coefficient is 2 in your first equation. In your second equation you just see कि by coefficient is 2. So in both the cases your coefficient is same. okay, coefficient of A is same. So now directly moving to the sign changes. okay, plus है तो you can use minus, यहाँ पे भी plus तो minus. So 2A both cancel, so remaining is what? 10 minus 14, 10 minus 14, so it's minus 4D, and over here 24 minus 44, so it's 20 but negative. okay, so therefore D is equal to what? minus 20 upon minus 4, so D is equal to what? 5. This is your value of D, right guys? Now अभी क्या करना है इसके बाद? D की जो वैल्यू है, as you know के here we have to find the first three terms. हम लोग को 3 terms find करनी है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर. What we have to find? First term, फर्स्ट 3 टर्म्स ना, तो मैं लिख देता हूँ. चलो फर्स्ट टर्म that is A, or we can say that A1. okay, then after moving to the second term,
सेकेंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है गाइस, इट्स A2 और फॉर्मूला इज व्हाट A प्लस D. ओके, ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द थर्ड नंबर टर्म. सो थर्ड टर्म इज व्हाट A3 एंड दैट इज A. जो देखो गाइस यहाँ पे क्या A प्लस 2D भी यूज कर सकते हैं या तो A2 प्लस D भी यूज कर सकते हैं. तो मैं एक ही फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ A प्लस 2D, राइट. तो चलो, in order to find your first term, second term, third term, okay, we required this A और D हम लोग को ऑलरेडी मिल गया है. now what we have to actually find A. तो कैसे फाइंड करें दिस A? ओके, आप लोग क्या करोगे, ये जो D की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ D, उसको आप लोग यहाँ पे कोई भी किकार्ड इक्वेशन में प्लेस करो. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ D पुट in equation number, which equation 1 में ले लेता हूँ, बराबर. so here we have 2a plus 10d is equal to 24. this is our second equation actually. okay, you just place the value of d in that equation. so 2a plus 10 into 5 is equal to 24, right. so therefore 2a plus 10 5 are 50 is equal to 24. then after 50 shifted towards the right hand side, so 2a is equal to 24 minus 15. now moving over here, 2a, see guys, 2a as it is and 24 minus 50, so it's minus 26. so a is equal to what, minus 26 upon 2. okay, so value of a it's negative 13. ओके, तो A की वैल्यू गाइज यहाँ पे हम लोग को मिल गई, बराबर. D वैल्यू इज ऑल्सो अवेलेबल, A इज ऑल्सो अवेलेबल. नाउ A एंड D बोथ सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन और इन योर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो आप लोग को फाइंड करना है एक्चुअली. ओके, सो व्हाट इज A इट्स नेगेटिव 13. ओके, A इट्स नेगेटिव 13. ओवर हियर नेगेटिव 13 प्लस व्हाट इज D इट्स 5. so minus 13 plus 5 is what, it's negative 8. and also over here, like you just see we can use A2 plus D formula, right. A2 plus D, हम लोग ये भी formula use कर सकते हैं. A2 is what, it's negative 8. what is D it's 5. okay, so minus 8 plus 5 is what, it's negative 3. ओके, तो आप लोग की ये जो 3 टर्म्स मांगी थी वो आप लोग को यहाँ पे मिल गई. ओके गाइस, क्लियर. आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे सम को करते हैं, बराबर. जो जो स्टेटमेंट गिवन है उसको खाली फॉलो करो एंड यू विल गेट आंसर. ओके गाइस, चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट सम लाइक 19th one. वन इज गाइज प्रॉब्लम सम. वो प्रॉब्लम सम जैसा है कुछ है, वो देख लेते हैं हम लोग. विल सी. ओके, लेट्स सी. ओके, इन 19th नंबर सम, सी सुब्बाराव करके कोई पर्सन है, स्टार्टेड वर्क ओके इन 1995. okay, at an annual salary of rupees 5000. you just see guys कि यहाँ पे उसकी सुब्बाराव करके कोई पर्सन है, 1995 की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, और एट दैट टाइम उसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी उसने जब स्टार्ट किया जॉब. ओके, चलो. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, एंड रिसीव्ड एन व्हाट, इंक्रीमेंट. उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल. ओके, इंक्रीमेंट एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर. देखो, हर साल उसकी जो सैलरी है वो 2000 जितनी बढ़ रही है, बराबर, इंक्रीज हो रही है. सो इन विच ईयर did his income reach rupees 7000. ओके गाइज, यू जस्ट सी कि सुब्बाराव करके कोई पर्सन था, उसने जॉब स्टार्ट की इन 1995. ओके, और एट दैट टाइम सैलरी इज 5000. ओके, एट दैट टाइम. ओके, नाउ आफ्टर दैट एवरी ईयर्स उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है, बराबर. दैट पर्सन हैविंग मीन्स इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपीज़
एवरी ईयर। जैसे कि 1995 में 5000 थी तो 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 5200। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो सुब्बाराव विल गेट व्हाट एट दैट टाइम 5400। 200 राइज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ। ओके, सो ऐसे कौन से साल में उसकी सैलरी होगी 7000? ओके, यू जस्ट सी गाइज। तो सुब्बाराव सैलरी, सुब्बाराव सैलरी was rupees 5000 in 1995। ओके, सुब्बाराव की सैलरी कितनी थी एट दैट टाइम? तो 5000। नाउ सुब्बाराव सैलरी was rupees 5200 in 1996। मतलब 1996 में उसकी सैलरी हो गई होगी 5200 बिकॉज 200 इंक्रीमेंट मिल रहा है एवरी ईयर। ओके, सो नाउ देन मूविंग टू नेक्स्ट, सुब्बाराव अगेन सैलरी वाज रुपीज 5400 इन 1997। ओके, ऐसे करके वो काम करती जाएगी बराबर। सो सुब्बाराव जो है, सुब्बाराव की सैलरी कब 7000 होगी इन डैश ईयर और इन विच ईयर वी कैन से दैट, बराबर। ऐसे हम लोग ने लिखा। तो यहाँ पे से गाइस एपी फॉर्म हो रहा है। यू जस्ट सी लाइक फर्स्ट ईयर हैविंग मींस सैलरी इज 5000, देन नेक्स्ट ईयर हर सैलरी वाज 5200 एंड देन 5400 एंड लास्ट मींस के कौन से ईयर पे उसकी सैलरी होगी 7000। ओके, एट विच ईयर she will get or he will get that amount 7000। so that we have to find guys। यहाँ पे गाइस देखो एकदम शांति से सोचो कि यहाँ पे हमारे पास ए अवेलेबल है, मीन्स फर्स्ट टर्म इज अवेलेबल, दैट इज 5000। व्हाट इज डी? डी मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, सो आंसर इज 200। ओके, देन आफ्टर सी आप लोग जानते ही हो कि ऑलवेज ये जो लास्ट में होता है दैट इज योर ए एन, इट्स 7000। ओके, सो दिस इज द डेटा वी हैव एंड एक चार चीज में से एक ही चीज बराबर हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, दैट इज एन ओनली। एन इज नॉट अवेलेबल, सो वी हैव टू फाइंड दिस एन। चलो, तो एन के लिए हम लोग क्या करें? वी हैव द फॉर्मूला लाइक ए एन इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गाइस। ओके, व्हाट इज ए एन ओवर हियर? ए एन इज 7000। व्हाट इज ए? A it's 5000 guys, you just see over here. Okay, n minus 1 here, n is not available, so n minus 1 as it is. What is d? D it's 200 guys. Okay, so now 5000 shifted towards the left hand side, so you will get 7000 minus 5000 is equal to remaining is n minus 1 into 200. Okay, so 7000 minus 5000 it's 2000 is equal to n minus 1 into 200. So now 200 को डिवाइड में ले जाए। ओके, सो रिमेनिंग इज ओवर हियर n minus 1। ओके, सो 200 10s are, so your answer is 10 is equal to n minus 1। so minus 1 को अगर हम लोग ये साइड ले जाए तो it's plus 1 is equal to n। okay, so what is the value of n finally? Value of n is 11, means after 11 years Subbarav will get 7000 rupees। okay, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटमेंट आफ्टर 11 years। okay, Subbarav will get रुपीज 7000। अगर वो टाइम की अगर एट दैट ईयर हम लोग अगर वहाँ से बात करें तो मैंने भी लिखा है। ओके, सो आफ्टर 11 years Subbarav will get। सो नाउ 1995 था। ओके गाइस, 1995 उसमें आप लोग 11 ऐड करो, सो प्लस 11, सो इट्स 6 0 1 0 1 2000। सो इन 2006 Subbarav will get rupees 7000 as सैलरी, मीन्स उसकी सैलरी जो होगी वो 7000 होगी। आई होप कि आप लोग को गाइस क्लियर हो गया होगा कि सम को कैसे करते हैं, राइट?
चलो, सो आफ्टर दैट जो 21 है गाइज इज सेम लाइक द 19th वन, सो यू कैन डू बाय योर ओन सेल्फ. ओके, सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज नाउ ओवर. So now moving to the next topic, moving to the next exercise for next examples, and that is totally based on the one formula like sum of nth term. You just see guys, यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, that is the what? Suppose see, here we have one AP, 1 2 3 4 5 and so on, right? हमारे पास यहाँ पे AP एक अवेलेबल है. ओके, अब तक तो हम लोग ने बोला कि भाई मुझे 11th नंबर टर्म फाइंड करनी है. वी हैव टू फाइंड 11th नंबर टर्म. तो आप लोग ने A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D फॉर्मूला यूज किया एंड यू कैन सॉल्व, बराबर. ओके, नाउ एक्चुअली नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड नाउ, सम ऑफ. मैं अगर बोलूँ कि सम ऑफ जितनी 11th जितनी यहाँ पे टर्म्स है उसको आप लोग ऐड करो और मुझे आंसर बोलो. देखो 11th नंबर पे कौन सी टर्म है वो मुझे नहीं जानना, जो पहली 11 टर्म्स है उसको ऐड करो एंड टेल मी द आंसर, राइट. सो सम ऑफ 11th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, बराबर, टर्म्स फर्स्ट 11th टर्म्स, मतलब पहली जो 11 टर्म्स है उसको आप लोग ऐड करो एंड टेल मी द आंसर. तो गाइज इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. हियर वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दैट. ओके, सो ये तो थी जस्ट नॉर्मल बात है, बराबर. नाउ मूविंग टू द मेन फॉर्मूला, दैट इज द सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, बराबर. तो कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ nth टर्म्स, ओके, ऑफ एन AP की हम लोग nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं गाइस. सो हियर वी हैव वन फॉर्मूला लाइक Sn इज इक्वल टू Sn, इसको सम ऑफ n, देखो सम के लिए S और n मींस के टर्म्स, n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसको बोलते हैं Sn गाइस. एंड फॉर्मूला फॉर दैट इज n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके, क्लियर हुआ कैसे? ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लो. दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ डिफरेंट टर्म, मींस nth टर्म्स और 11 टर्म्स और 12 टर्म्स. ओके, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है गाइस. Sn इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अगेन रिपीट, Sn इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन 2 इंटू द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ओके, सो हियर Sn मीन्स व्हाट, sum of n terms. Okay, n as you know, a you know very well, d you know very well, बराबर. a means first term, d means common difference. तो ये गाइस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द सम. आई अगेन रिपीट, सम. चलो, सो मूविंग टू एग्जाम्पल सम्स गाइस. ओके, एग्जाम्पल सम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइक एग्जाम्पल नंबर 11. ओके, सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, ओके, ऑफ द AP, of the AP 8, 3, minus 2 and so on. Okay, find the sum of first 22 terms of an AP 8, 3, minus 2. See guys, first of all हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं कि here we have the AP like 8, 3, minus 2, so on. Okay, so now tell me guys, what is A over here? A, it's 8. What is D? So by 3 minus 8. Okay, so it's negative 5, right? What is then n? यहाँ पे देखो गाइस कितनी टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट 22 टर्म्स. 22 टर्म्स मींस n इज 22, राइट. ओके, एंड यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे ऐसा ही लिखा होगा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. सम आया, इट मींस के Sn का ही फॉर्मूला यूज करोगे, राइट. तो चलो यहाँ से हम लोग फाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं. लाइक सम ऑफ
sum of nth term. Okay, sum of nth term. N terms. Okay, so formula is what? Sn is equal to n upon 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d, right? You just place all the values like n, a and d in these equations. So what is the over here S22, because we have to find the sum of first 22 terms. So S22 n को replace करो by 22, over here same 22 upon 2 into the bracket 2a n minus 1 and over here d. What is a? A it's 8, okay. What is n? N it's 22 1, okay, and d it's negative 5. चलो see, 2 11s are 22, 2 11s are 22, okay. So 2 8s are over here 16 and 22 minus 1, guys, 22 minus 1 it's 21 into negative 5. So 11 into bracket 16. See guys, plus minus is minus, and 21 5s are how many? 21 5s are 5 1s are 5, 5 2s are 10. So it's 105, right? So 11 into 105 में से अगर हम लोग 16 माइनस करें तो कितना बचेगा गाइस? 85, सॉरी चलो 105 में से अगर 15 माइनस करें तो 90, इट मीन्स के 89, ओके. बट बिगर नंबर साइन इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई negative. So 89 multiplied by 11, guys, you just multiply the values. 11, okay, 0 9 8, 9 ones are 9 and 8, okay. So 9 7 1 9. So your answer is what, guys? 979 but negative. बोलो clear guys? इसके बाद जो टर्म होगी that is 979, okay. 22 नंबर्स की जो टर्म होगी वो फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, लाइक गाइस यहाँ पे, ओके. 21 5 it's 105, 8 2 what is the value of a? It's 8, okay. A it's 8, right? D is negative 5, 22 minus 1 21, 21 5 105 plus minus is minus 16 minus 105 it's negative 89 and multiply करो, so you will get 979. Means sum of first 22 terms is negative 979, guys, okay. So I hope कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा सम. Now moving to next sum, guys. चलो, so next sum is example number 14, guys. 14(1). See, find the sum of 1 means first number sum. इसके अंदर the first 1000 positive integers, okay, or the second side we have to find what we have to find the first n positive integer, the first n positive integer, okay, integers, okay. Chalo, now moving to the main sum. See guys, गाइज हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है, आप लोग को मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ. जैसे Sn के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके. तो Sn के प्लेस पे सम टाइम मैं ये भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ a प्लस l, ओके. n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l, a इज योर फर्स्ट टर्म, l मीन्स योर लास्ट टर्म, ओके, और n अपॉन 2. तो ये भी सम टाइम फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो. n की जगह पे L means what? It's your last term, guys. लास्ट, अगर लास्ट टर्म अवेलेबल है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करो, तो इट्स वेरी सिंपल, ओके, फॉर यू. चलो सी, तो हियर फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यू जस्ट सी, AP में लिख रहा हूँ लाइक 1 पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स व्हाट? नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही तो 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाना है गाइज?
लास्ट नंबर होगा 1000. ओके, सो हियर वी हैव a is your first term, that is 1. What is d? It's 2 minus 1, so it's again 1. okay, and the last term you just see, अगर सम वाले मीन्स सम फाइंड करना है, ऐसे सम्स आप लोग देख रहे हो तो उसको an लिख दो, an is 1000. ओके, an को हम लोग l से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो सी गाइस, हियर वी हैव फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन 2 इनटू द ब्रैकेट. कौन सा फॉर्मूला यूज करें? a प्लस l वाला यूज करते हैं, बिकॉज लास्ट टर्म इज अवेलेबल गाइस इन दिस केस. सो ओवर हियर n इज व्हाट, n मीन्स 1000 टर्म्स ना, आप लोग को बोला हुआ है कि यहाँ पे 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करो. सो 1000 अपॉन 2 एंड ओवर हियर a is 1 and l is 1000. okay, so 1000 upon 2 it's 500 and 1000 plus 1 1001 guys. okay, so आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, so you will get 5000. okay, ऐसा समथिंग मिलेगा, 5,05,000 समथिंग. चलो, तो ये क्लियर हुआ गाइस कैसे फाइंड करते हैं. इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, n अपॉन 2 into bracket a plus l. When we are means going to use this formula, तो if we have last term in our sum. okay, same way. चलो, first n positive integers, so 1 2 3 4, बराबर. बीच में गाइस कौन सी साइन यूज करेंगे हम लोग? प्लस, बिकॉज यहाँ पे सम बोला हुआ है इन लोग ने, so last term is n. okay, so same formula we can use over here. a it's 1, d it's what, 2 minus 1 and it's again 1, and an is equal to l. an भी बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं, and it's n. okay, so here we have formula Sn is equal to n upon 2 into the bracket a plus l. okay, so what is n? n की जगह पे तो हम लोग n ही लिखेंगे, n upon 2 as it is. a it's 1 and last term is n, so your formula is what, n into bracket n plus 1. देखो guys, इसको n plus 1 upon 2 लिख देता हूँ. okay, so this is your Sn. clear guys, ये फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है. Sn is equal to n into bracket n plus 1 upon 2. okay guys, चलो, so I hope कि आप लोग को क्लियर हो गया है ये टॉपिक. okay, then after moving to exercise 5.3 guys. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, here we have what we have to find the sum of the sum of given APs. ओके, आप लोग को ये इसमें एक गिवन है AP, वो देखो लाइक 2 7 2 7 12 so on and to 10 terms. It's very simple guys, you just see over here a it's 2, d it's what, 7 minus 2, so it's 5. an means your last term we don't know. okay, तो ये निकाल देता हूँ. what is n? कितनी टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? 10 टर्म्स. so what is the formula for that? Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. just place all the values like 10 upon 2a. what is a? it's 2, n minus 1 10 minus 1. what is d? d it's 5. so 5 4 10 minus 1 9 and 5. so 5 into bracket 4 plus 9 5s are 45. so 5 into 49. so 5 9s are 45, 4 5 4s are 20, means it's 245. so guys, कैसे फाइंड करते हैं? क्लियर हुआ? 10 टर्म्स S10 and over here S10. okay, so now we will continue. यहाँ पे ही हम लोग वाइंड अप करें. we will continue in our next lecture, in our next video. okay guys, bye all of you, thank you.